بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ٹرانسپورٹرز کے وفاقی وزیر علیم خان سے مذاکرات میں ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کیے گئے مطالبات کی منظوری پر متفق حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان معاملات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ نبیل محمود طارق کل سے ہڑتال کو ختم کر دیا جائے گا۔ صدر آل پاکستان گڈ ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن کا ایسا کہنا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ٹرانسپورٹرز کے وفاقی وزیر علیم خان سے مذاکرات کامیاب ہو گئے، مطالبات کی منظوری پر متفق ہوئے، حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان معاملات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں سعید احمد سعید سے۔ جی سعید، بتائیے گا مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں؟ جی بالکل، آل پاکستان ٹرانسپورٹر ایسوسیشن کی طرف سے گزشتہ 9 روز سے جو ہڑتال تھی، اس حوالے سے آج ٹرانسپورٹر کے وفد کا جو ہے وفاقی وزیر علیم خان سے ملاقات ہوئی ہے، اور ٹرانسپورٹ کی جو صدر ہیں آل پاکستان ایسوسی ایشن کے نبیل محمود طارق کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات میں ٹرانسپورٹر کی جانب سے دیے گئے جو مطالبات کی منظوری پر متفق ہے، وہ حکومتی ارکان اور ٹرانسپورٹر ہیں وہ ہو گئے ہیں، اور حکومت اور ٹرانسپورٹر کے مابین جو معاملات کو جو ہے وہ ختمی شکل ہے وہ دی جا رہی ہے، اور کچھ ہی دیر بعد باقاعدہ پریس کانفرنس کے ذریعے یہ اعلان کیا جائے گا کہ جو ہڑتال ہے وہ ختم کی جا رہی ہے، اور کل بروز 17 اگست سے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ روز کے اوپر ہے وہ رواں ہوگی، ایسا کہنا ہے آل پاکستان گڈ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن لاہور کے صدر نبیل محمود طارق کا۔ اور یہ بھی ان کا کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے جو وفاقی وزیر علیم خان تھے ان کی طرف سے مذاکرات کیے گئے ہیں، اور مذاکرات کو جو ہے مطلب ختمی کی شکل ہے وہ دی جا رہی ہے۔ جیسے ہی ختمی شکل مکمل ہوتی ہے اس کے بعد پریس کانفرنس کے ذریعے باقاعدہ طور پر ہڑتال ختم کرنے کا اعلان ہے وہ کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ سعید احمد سعید آگاہ کرنے کے لیے۔ مال روڈ فیصل چوک جماعت اسلامی لاہور کا پیٹرول لیوی کے خلاف احتجاجی دھرنے میں جماعت اسلامی کے کارکنان کافلوں کی صورت میں پہنچنا شروع۔ مسجد شہداء سے قافلہ فیصل چوک کے جانب روانہ، کارکنان کی کثیر تعداد اس وقت شریک ہے۔ احتجاجی دھرنے کے باعث فیصل چوک کو ٹریفک کے لیے دونوں اطراف سے بند کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، توقیر اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی توقیر، بتائیے گا اس وقت دھرنے میں کتنے شرکا پہنچ چکے ہیں، اور کیا جماعت اسلامی جو ہے یہ پیٹرول لیوی ختم کرانے میں کامیاب ہو پائے گی؟ دیکھیں، جو سچویشن نظر آ رہی ہے نہ صرف شہر لاہور سے بلکہ ملک بھر سے جو کارکنان ہیں وہ قافلوں کی صورت میں فیصل چوک پہنچ رہے ہیں، اور اس وقت چیرنگ کراس سے جو مسجد شہداء کا راستہ ہے ہال روڈ تک، وہ تقریباً 1 سے 1.5-2 کلومیٹر کا راستہ بنتا ہے، اور وہ ٹوٹل جو ہے بلاک ہے، وہاں پر بھی کارکنان بیٹھے ہیں، اور یہ پورا روڈ جو ہے کارکنان سے بھرا ہوا ہے۔ اور تاحال جو جماعت اسلامی کے کارکنان ہیں وہ ملک بھر سے قافلوں کی صورت میں یہاں پر پہنچ رہے ہیں، قائدین خطاب کر رہے ہیں، اور ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو پیٹرولیم لیوی ہے اس کے خلاف جو آج دھرنے کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے، اس میں جب تک کمی نہیں آئے گی، جو مطالبہ کیا گیا ہے تقریباً 125 روپے ٹیکس کے ساتھ پیٹرول کی قیمت نہیں کی جائے گی، تب تک یہ احتجاجی دھرنا جو ہے وہ ختم نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی کے حوالے سے ابھی کچھ دیر بعد جو امیر جماعت اسلامی ہیں وہ بھی خطاب کریں گے، اور آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے جو یہاں پر کارکنان ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کو بتایا جائے گا۔ ہمارے ساتھ کارکنان بھی موجود ہیں۔ آپ کہاں سے آئے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جمع غفیر بہت زیادہ ہے، کیسا؟ جی بالکل، حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے پورے ملک کے اندر گورنر ہاؤسز اور سی ایم ہاؤسز کے باہر دھرنوں کا اعلان کیا گیا تھا۔ اسی طرح سندھ کے اندر بھی، کے پی کے اندر بھی، اور پنجاب کے اندر بھی آج دھرنوں کا اعلان کیا تھا، تو دھرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ کچھ ہی دیر کے اندر امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب ادھر موجود ہوں گے، وہ اگلے لائحہ عمل کا ہمیں جو ہے نا اعلان کریں گے، اور جب تک یہ جو لیوی ٹیکس لے رہے ہیں ہم سے 120 روپے لیوی ٹیکس ہم سے عوام سے بھتہ وصول کر رہے ہیں، جب تک یہ ختم نہیں کرتے، جب تک آئی پی پی کے ساتھ جو انہوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں وہ ختم نہیں کرتے، جب تک مہنگائی کم نہیں ہوتی، ہم امیر جماعت اسلامی کے حکم کے منتظر ہیں، اور یہ عوام کا جمع غفیر جو ہے حافظ صاحب کے اعلان کا منتظر ہے۔ ابھی تو یہ دھرنا شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، ختم کرنے کا اعلان حافظ صاحب نے نہیں کیا۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں حافظ صاحب ہمارے درمیان موجود ہوں گے، اور جس طرح حکم کریں گے یہ ساری عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ جس طرح حکم کریں گے اس طرح عوام ساتھ ہوگی، اور بڑی تعداد میں قائدین موجود ہے۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، کیسا جذبہ ہے؟ آپ ابھی دھرنے کا آغاز ہوا ہے، کیا آپ کو آگے نظر آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس رش سے انہیں کوئی فرق؟
इंशाल्लाह ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। हाफिज़ नईम रहमान जो गरीबों का हमदर्द है, पाकिस्तानी कौम का अगर वाहिद कोई सियासतदान है ना वो हाफिज़ नईम रहमान है। मैंने सब पार्टियों को देखा है, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, लेकिन किसी को अवाम की परवाह नहीं है। हाफिज़ साहब जो है वो इस कौम के लिए निकले हैं और ये जो नाजायज़ लेवी है 80 रुपये से ज़ायद और टैक्स डाल के 130 रुपये से ज़ायद की जो रकम है, ये हुकूमत को ये लेवी वापस लेना पड़ेगी। अब ये बताएं, मेरे जैसे लोग, मैंने एमए किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से, लेकिन मेरे पास डिग्री है, उस डिग्री का क्या फ़ायदा जब मुझे जॉब नहीं मिलनी इस मुल्क में, फिर ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा है। अब हम करें तो करें क्या? ना हम बाहर जा सकते हैं, ना हम इधर रोज करते हैं। अब मरियम नवाज साहब आप ही बताएं हम लोग क्या करें? नौजवानों के पास एक ही हल है, हाफिज़ नईम रहमान की सूरत में। सब लोग जानते हैं कोई ईमानदार आदमी है, और मेरा एक तहरीक इंसाफ के लोगों से गुजारिश है कि खुदारा ये आप सब का मसला है, ये हाफिज़ साहब का मसला नहीं है। ये जो आपके जो यूट्यूबर झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, खुदारा इनसे बचें, और ये हम सब का मुश्तरका मसला है। आप जिसको मर्जी वोट दे दें, लेकिन इस पर सियासत ना करें, सियासत से बाज आ जाएं। और हाफिज़ साहब के खिलाफ जो झूठा प्रोपेगेंडा खास तौर पर तहरीक इंसाफ कर रही है, खुदारा उससे बाज आ जाएं। हालांकि ये जो एहतजाज है ये नून लीग के खिलाफ है, तहरीक इंसाफ को तो इसमें साथ देना चाहिए, लेकिन उनके जो यूट्यूबर हैं वो आम जो उनके कारकुनान हैं उनको गुमराह कर रहे हैं और हाफिज़ साहब के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा है कि बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं उनका जोशो जज्बा भी इतनी है, नारे लगाए जा रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, मुतालबा किया जा रहा है कि पेट्रोलियम लीवी की कीमतों में कमी, जो बिजली है उसके जो कीमतें हैं उस पर कमी की जाएगी। किसान की जो बड़ी तादाद में जो किसान है वो ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर करम आगाह करने के लिए। सुई गैस की लोड शेडिंग के बायस से एलपीजी की मांग में इजाफा हो गया, ताहम मांग बढ़ते ही मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी की कीमतों में मनमाना इजाफा भी देखने में आ रहा है। सुई गैस की लोड शेडिंग के बायस एलपीजी की मांग में इजाफा हो गया, ताहम मांग बढ़ते ही मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी की कीमतों में मनमाना इजाफा भी देखने में आ रहा है। सरकारी कीमत 254 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर होने के बावजूद एलपीजी 350 से 450 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जो सरकारी नर्ख से 196 रुपये फ़ी किलो तक ज़ायद है। शहरियों का कहना है कि सुई गैस की अदम दस्तियाबी के बायस वो महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि इजाफी कीमत वसूली ने घरेलू बजट मुतासर कर दिया है। शहरियों ने मुतलका हुकाम से एलपीजी की कीमतों में मौसर निगरानी, ज़ायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और सरकारी नर्ख पर फ़रोख्त यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। लेस्को ने बिलों की मद में अरबों की वसूली के लिए कमर कस ली। डिफॉल्टर्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला, किसी भी इमारत में एक बिल जमा ना होने पर तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करने का हुक्म। घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल समेत तमाम डेट डिफॉल्टर्स के खिलाफ यह कार्रवाई होगी। लेस्को ने बिजली के बिलों की मद में डेट डिफॉल्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। शहर में किसी भी इमारत पर एक बिल अदा ना होने पर तमाम कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकाम जारी कर दिए। लेस्को में लाखों सार्फिन के घरों पर डेट डिफॉल्टर की मद में वाजिबात जमा नहीं हो सके। सार्फिन ने बिलों की अदायगी करने के बजाय एक और कनेक्शन हासिल कर लिया और न्यू कनेक्शन के जरिए मीटर नस्ब कराकर बिजली का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेस्को ने वाजिबात की वसूली के लिए नादहिंदा बिल्डिंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया है, जिसके तहत घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल समेत तमाम डेट डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह लेस्को ने डेट डिफॉल्टर्स से वसूली के लिए लीगल टीमों को भी मुतहर्रिक कर दिया है, क्योंकि सार्फिन ने वाजिबात की अदम अदायगी पर मुख्तलिफ इलाकों से रुजू कर रखा है। लेस्को ने अदालतों से केसेस के फैसले लेकर बिलों की वसूली की हिदायत की है। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के निज़ाम को मज़ीद मौसर और शफाफ बनाने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने हाउसिंग रिफॉर्म्स के लिए रूल्स में तरामीम की मंजूरी दे दी। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के रेगुलेटरी निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जाएगा। इस्लाहात से प्राइवेट शोबे को सहूलतें फराहम की जा सकेंगी। पंजाब हुकूमत का प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के निज़ाम को मजीद मौसर और शफाफ बनाने का फैसला। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स रूल्स 2021 में तरामीम मंजूर कर ली गई। अफोर्डेबल प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रूल्स 2020 में भी तरामीम की मंजूरी दे दी गई। रूल्स में तरामीम का मकसद प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों की मंजूरी और तरक्याती अमल को तेज करना है, गैर जरूरी रुकावटें कम करना और हाउसिंग मंसूबों पर अमल दरामद मौसर बनाना है। हाउसिंग रिफॉर्म्स के जरिए प्राइवेट शोबे को सहूलतें फराहम करने और हाउसिंग सेक्टर में
में सरमायाकारी के फरोग के लिए साजगार माहौल यकीनी बनाया जाएगा। तरमीम शुदा रूल्स के तहत प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के रेगुलेटरी निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा सकेगा। शफाफियत, बेहतर मनसूबाबंदी और मौसर रेगुलेशन पर तवज्जो दी जाएगी। रूल्स और तरमीम के जरिए अफोर्डेबल हाउसिंग के फरोग और शहरियों को सस्ती रिहाइश की फरहमी के अमल को भी मजीद मौसर बनाया जाएगा। और यहाँ आपको बताएं कि कब्जा ग्रुप ने खेलों के मैदान भी ना बख्शे। आशियाना क्रिकेट स्टेडियम से 15 साल बाद नाजायज़ कब्जा वागुजार। ज़िला इंतजामिया ने गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन करके 72 कनाल कीमती सरकारी राजी वागुजार करा दी। वागुजार कराया गया आशियाना क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम के हवाले काबजीन के खिलाफ मुकदमात के इंदराज की कार्रवाई शुरू कर दी गई। आशियाना क्रिकेट स्टेडियम पर गुज़िश्ता 15 साल से कायम गैर कानूनी कब्जा खत्म करवा दिया गया। पैरा फोर्स और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर लाहौर की टीमों ने मुश्तरका ऑपरेशन करके 72 कनाल कीमती सरकारी अराजी और स्पोर्ट्स ग्राउंड से वागुजार करा लिया। कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर तहसील नश्तर मोहम्मद सलीम आसी की क़यादत में की गई। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी काबजीन को मौके से बेदखल कर दिया गया, जबकि मौके पर मौजूद सामान भी इंतजामिया ने अपनी तहवील में ले लिया है। इंतजामिया के मुताबिक आशियाना स्कीम में वाक़ स्पोर्ट्स बोर्ड के क्रिकेट स्टेडियम पर गुज़िश्ता 15 साल से गैर कानूनी कब्जा कायम था। वागुजार कराई गई सरकारी अराजी का कब्जा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम के हवाले कर दिया गया है ताकि स्पोर्ट्स ग्राउंड को इसके असल मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसे नश्तर मोहम्मद सलीम आसी का कहना है कि गैर कानूनी कब्जे करने वालों के तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उनका कहना था कि सरकारी अराजी और खेलों के मैदानों पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का लंदन के लिए रोजाना एक परवाज चलाने का फैसला। लंदन के लिए हफ्तावार 7 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। PIA लाहौर और इस्लामाबाद से मुश्तरका 7 परवाजें ऑपरेट करेगी। इस्लामाबाद से लंदन हफ्तावार 5 परवाजें, लाहौर से लंदन हफ्तावार 2 परवाजें शामिल हैं। टर्किश एयरलाइंस से स्लॉट वापस पर PIA लंदन के लिए रोजाना 1 परवाज ऑपरेट करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ज़िला अटक के अरकान सूबाई असम्बली ने मुलाकात की। अवामी ज़रूरियात और तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में कामयाबी पर वज़ीर आला मरीम नवाज को मुबारकबाद दी और ज़िला अटक में इलेक्ट्रो बस सर्विस के आगाज़ पर खराज तहसीन पेश किया। अरकान असम्बली ने कहा कि ख़वातीन, तलबा और बुजुर्गों के लिए बेहतरीन बस सर्विस में मुफ्त सफ़र नेमत के मुतरादिफ है। मिसाली गाँव प्रोजेक्ट के तहत देहात की अपग्रेडेशन इनकलाबी इकदाम है। पंजाब के तरक्याती मनसूबे और तारीखी प्रोजेक्ट से दीगर सूबों के लिए मिसाल बन रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तर्ज पर साफ पानी का मनसूबा भी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। सफाई सुथराई के बाद अब पूरे पंजाब के तमाम शहरों में पीने का साफ पानी मुहैया करना अज़्म है। दूसरी जानिब MPA मलिक शहबाज अली खोकर ने मरकजी दफ्तर PP 162 पाइन एवेन्यू में हल्के के आवाम से मुलाकात की। मुख्तलिफ इलाकों के अफराद ने मसाइल पेश किए। मुलाकात में जमील शहजाद, शेख करामत, मोहसिन अफजल, मियाँ फारूक, राना साकिब, चौधरी शबीर विर्क समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। इस मौके पर अवामी नुमाइंदे ने शहरियों के मसाइल सुने और मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू की। MPA मलिक शहबाज अली खोकर ने कहा कि अवाम के मसाइल का हल उनकी अव्वलीन तरजीह है और उन्हें जल्द अज जल्द हल करने के लिए अमली इकदाम किए जाएंगे। अहले इलाका ने मसाइल सुनने पर इत्मीनान का इजहार किया और फौरी हल की उम्मीद जाहिर की। अलखिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मेरा ब्रांड पाकिस्तान के उन्वान से 3 रोज़ा एक्सपो का इनेकाद। मुख्तलिफ पाकिस्तानी ब्रांड्स और इदारों ने अपनी मसनूआत और खिदमात मुतारिफ कराई। एक्सपो में हमदर्द ने भी खुसूसी स्टॉल कायम किया। शहरियों को मुख्तलिफ मसनूआत के बारे में आगाही फराहम की गई। हमदर्द के स्टॉल पर मसनूआत की लाइव टेस्टिंग का भी एहतमाम किया गया। शहरियों को हमदर्द के मुख्तलिफ शरबत चखाए गए और उनके जायके और मयार से आगाह किया गया। हमदर्द के मुख्तलिफ मसालाजात इस्तेमाल करते हुए लाइव कुकिंग का भी इनेकाद किया गया। तैयार किए गए खाने शहरियों को भी पेश किए गए। हमदर्द के डिप्टी डायरेक्टर अली बुखारी का कहना था कि मेरा ब्रांड पाकिस्तान जैसे प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तानी ब्रांड्स को आवाम के करीब लाने और अपनी मसनूआत मुतारिफ कराने का बेहतरीन जरिया है। पंजाबी अदीब और दानिशवर मोहम्मद हुसैन भट्टी की नई किताब हक दी तलवार की तकरीब रुनमाई हुई। तकरीब में अदीबों, दानिशवरों और पंजाबी ज़बान और अदब से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की।
PHM में हाउस मुस्लिम टाउन में मारूफ पंजाबी अदीबो दानिश्वर मोहम्मद हुसनैन भट्टी की नई किताब हक दी तलवार की तकरीब रोनुमाई हुई। तकरीब में जनरल सेक्रेटरी आपका पाकिस्तान मोहम्मद रियाज, सदर पंजाब सोशल मोनूमेंट मोहम्मद ताहिर भट्टी, नेक मोहम्मद खोखर एडवोकेट और गजाला निजामुद्दीन समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। मुकर्रीन ने किताब को पंजाबी जुबानो अदब के लिए अहम काविश करार दिया। पंजाब की धरती दुनिया दी ज़रखेज़ तरीन धरती, इन्ने बड़े बड़े वड्डे नाम पैदा किए। इन्हू सोने की चिड़िया कहते सन। और जनाब सोना नहीं सी निकलता इथों, अजीम लोग निकलते सन, ज़ेन निकलते सन, बड़े बड़े बुजुर्ग निकलते सन, जिन्हों ने पूरी धरती हुकूमत भी की, अपना नाम भी पैदा। हक दी तलवार में मियाँ मोहम्मद बख्श की फिक्र, सुफियाना कलाम और तालीमात को मौजू बनाया गया है। मुसन्निफ मोहम्मद हुसनैन भट्टी के मुताबिक किताब का मवाद मियाँ मोहम्मद बख्श की 16 कुतब से अखज़ किया गया है। मोहम्मद हुसनैन भट्टी की पहली किताब राही मदीना 2011, दूसरी किताब कोक पाकिस्तान कोक 2023 में शाया हुई। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਖਸੂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮਵਾਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਰਫ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਰਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਵਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਲ ਜਲ ਹਾਰ ਨਾ ਹਾਰੀ ਹਿੰਮਤ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੀ ਪਾਸਾ, भुखा मंगन चढ़े मोहम्मद, ओढ़क भरदा कासा, यानी मुसलसल जद्दोजहद और हिम्मत का दर्स देता है। तकरीब के शुरा का कहना था कि पंजाबी जुबानो अदब के फरोग के लिए ऐसी अदबी काविशें नई नस्ल को अपनी सिकाफत और सूफियाना विरसे से जोड़ने में अहम किरदार अदा करती है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ मरियम मजहर, सिटी 42। माल रोड फैसल चौक पर जमात इस्लामी लाहौर के ज़ेर एहतमाम पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ एहतजाजी धरना, हाफिज नईमुर रहमान खिताब कर रहे हैं। किया और ये जो सड़कों को बंद किया तो न कोई पत्थर फेंका, न किसी की नक्सीर फूटी, न कोई गमला टूटा, और जहां जहां हुकूमत ने अपनी पुलिस के जरिए से रास्ता रोकने की कोशिश की तो रास्ता भी नहीं रोक सके, लेकिन हमें काम से भी नहीं रोक सके। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान को बैक वक्त हमने बंद किया। यह जमात इस्लामी की अल्हम्दुलिल्लाह ताकत है, स्ट्रीट पावर है, और जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान के लोगों की तर्जुमान है। और आज इस वक्त जितनी बड़ी तादाद में आप यहां मौजूद हैं, तो गवर्नर हाउस कराची में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। उन्होंने कंटेनर भी लगाए थे, कुछ शेल भी फायर हो गए, लेकिन उसके बावजूद वो कारकुनान के और नौजवानों के कदमों को रोक नहीं सके, और धरना इस वक्त कराची में पूरी आबोताब के साथ जारी है। इस वक्त पिशावर में भी तारीखी धरना शुरू हो चुका है, और मोहतरम लियाकत बलोच साहब खास तौर पर वहां केपी के आवाम से इजहार यकजहती के लिए मौजूद हैं। और यहां सीएम हाउस के सामने भी, और इस तारीखी चौक पे के जिस पे तमाम वो इदारे, असम्बली भी हो, वजीर आला हाउस भी हो, पीछे गवर्नर हाउस भी है, वो सब के सब मौजूद हैं, और आप इतनी पूरी कुव्वत के साथ यहां मौजूद हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। और जावेद भाई ने जो आपसे सवाल किया है वो मैं भी करता हूं कि आप जाने के लिए आए हैं या ठहरने के लिए आए हैं? यहां बैठने के लिए आए हैं इंशाअल्लाह। तो फिर जब आप यहां बैठने के लिए आए हैं तो क्यों आए हैं? इसलिए तो नहीं आए हैं कि हमें कोई शौक है कि हम लोगों को इस शदीद तरीन गर्मी में अपने घरों से निकालें और सड़कों पर लाकर बिठा दें। इस वक्त पाकिस्तान के लोग एक अजियत से दो चार हैं, एक मुसीबत में इस हुक्मरान टोले ने हमें दो चार कर दिया है, और हम पर ऐसी चीजें मुसल्लत की हैं जिससे दो वक्त की रोटी भी लोगों की मुश्किल हो गई है। अपने बच्चों की तालीम कैसे जारी रखें, इस दुख को वो लोग जानते हैं कि जब स्कूल से फीस का वाउचर आता है
اور ماں باپ اس پیسے کو فیس ادا کرنے کے قابل اپنے آپ کو نہیں پاتے ہیں. اس دکھ کو کوئی وہ کیسے محسوس کر سکتا ہے کہ جن کی عیاشیاں چلتی ہوں, جن کے پیٹرول فری ہو, جن کی بجلی فری ہو, جن کے اوپر ٹیکس بھی بہت سارے لاگو نہیں ہوتے ہوں, اور جو مسلسل لوٹ مار کے اس پورے نظام میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوں, وہ محسوس نہیں کر سکتے اس باپ کا دکھ کہ جب وہ گھر میں آتا ہے اور جب بچے اس سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں, تو وہ اس کے پاس وہ پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کوئی پھل دلا سکے یا کوئی ان کے لیے کوئی گفٹ ان کے کسی خاص موقع پر دے سکے. اس دکھ کو یہ بورجوا طبقہ, یہ مراد یافتہ طبقہ, یہ ایلیٹ کلاس, یہ نام نہاد اشرافیہ, یہ کیسے جان سکتی ہے اس دکھ کو کہ مکان کا کرایہ جتنا ہو اس سے زیادہ بجلی کا بل آ جائے؟ یہ کیسے جان سکتے ہیں اس نوجوان کا دکھ اور پریشانی کہ جسے اپنی یونیورسٹی اور کالج میں جانا ہو اور اس کے پاس پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہ ہو, اور پھر اس پر ظلم یہ کرتے ہیں, جبر یہ کرتے ہیں کہ صرف پیٹرول کی قیمت ہی نہیں بڑھاتے, اس کے ٹیکسوں میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں. کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی. مال روڈ فیصل چوک پر جماعت اسلامی لاہور کے زیر اہتمام پیٹرولیم لیوی کے خلاف احتجاجی دھرنا. حافظ نعیم الرحمان خطاب کر رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. آپ رہیے City 42 کے ساتھ.